monkey and the crocodile. Yes, correct. The monkey and the crocodile. This is very interesting story, na? Have you heard about it before in small class? Yes, like ma'am. class 4, class 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, na? And you know maybe more or less. Am I right? Yes, ma'am. Yes, na? Yeah. So today we'll start that new chapter. Chapter 6 or chapter 7 it is? Chapter 6, no? Yes, chapter 6. So the monkey and the crocodile. So first of all, I will give you the introduction. Okay. So you will see one forest. In that forest there was a tree, and near that there was a river or pond, you can say. Hai. So on that tree, who was living, you know? Who was living in that on the tree? Monkey. The monkey. Yes, correct. Monkey was living in that tree, and the crocodile was In a I'm in river. a water. inside the water. Yes, पानी के अंदर रहता था ना वो. So one day what happened? Monkey was on the tree, and he was feeling very lonely. Lonely means अकेलापन, है ना? अकेलापन महसूस कर रहा था. Can you hear me, बेटे, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Voice is clear? Yes. तो वो monkey जो था वो उसको अकेलापन महसूस हो रहा था. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. फूड ढूंढने के लिए. गुड आफ्टरनून बेटा अंकित. So he came to search food for his wife, and he had a small children, है ना? So when he came, he could see that monkey was on the tree, and monkey asked him, do you want some food for yourself and for your wife also? So he says that yes, I want it. So can you give me? And he gave that fruit, ना, वो फल दिया. उसके बाद वो फल खाने के बाद क्या हुआ? That फल fruit was very tasty, है ना? Yes, Yes, very ma'am. tasty. So वो क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल बोलते हैं कि kindly give me some more fruit for my wife and children also. So that monkey, good afternoon. So ये जो क्या बोलते हैं? Monkey gave some fruit for that crocodile and his wife and children. That he took and went to the house. When that he ate that fruit, the crocodile's wife was very fascinated, and she it was very tasty. That's why she thought of eating the monkey's heart, and she was pretending that she is becoming sick, है ना? Yes or no? तो ये जो है, Yes, ma'am. and तो वो नकल कर रहा था ना कि उसको बीमार हो रहा है जैसा, है ना? तो ये क्या है? वो बीमार वाले तो क्या होते हैं? उनका तो फेस से ही पता चल जाता है ना बेटे? यस और Yes, नो? ma'am. फेस से पता चल जाता है, Yes, बुखार ma'am. हुआ है या तो सिर में दर्द है, तो क्या है ना, ये पता चल जाता है. बट शी वाज प्रिटेंडिंग. यदि आप लोग नकल करोगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, है ना, कि यू आर फीलिंग फीवरिश और जस्ट यू आर टेलिंग लाई, है ना? स्कूल में भी कभी कभी क्या होता है, मैं स्टमक इज पेनिंग, आई एम हैविंग हेडेक, लेग पेन, बैक पेन बोलते हैं ना, पर सबको छुट्टी क्यों नहीं मिलती है? Because teachers also, they are very clever, ना, Ma'am, by because it seeing was- your face. Yeah, तो उनका फेस देखने के बाद उनको पता चल जाता है ना? So she also is the crocodile. She crocodile is not having any sickness, but she wanted to eat the hearts of monkey. So let's read the chapter again. Now I will read the chapter. Okay, so I will share you the PDF and you have to follow that. Correct? Okay, ma'am. हिमांशु को हेडेक हो रहा है बेटा? No, ma'am. No, that's good. So I will share you the PDF now. Now be ready all of you and unmute yourself everyone. ठीक है? Yes? Unmute yourself. Children, please unmute yourself everyone. Now I will show you the PDF. So we will read that chapter now. I will read, all of you have to listen fully, okay? Yes?
ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। बेटा स्क्रीन ma'am. दिखाई दे रहा है आप लोग Yes, को? ma'am. गुड। Okay, the monkey and the crocodile. Chapter 6, the monkey and the crocodile. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. They met regularly and talked. The monkey, हाँ बेटा, good afternoon, in the tree and the crocodile on the ground. So now we'll read the full chapter. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. So इसका मतलब क्या होता है? एक टाइम क्या हुआ, ऑन अ रिवर ऑफ अ बैंक, मतलब नदी के किनारे एक मंकी रहता था, ऑन अ ट्री मतलब ट्री के ऊपर, एंड द ट्री वाज लैडन विथ फ्रूट. लैडन विथ फ्रूट का मतलब होता है वो पूरा फ्रूट इतना फल से भरा हुआ था. यस बेटे, हाँ, फलों से लदे हुए वाला ट्री ना, पूरा इतना ज्यादा फल हुआ था वहां पे, मैंगो जहाँ पे मंकी रहता था ना, उसमें का वहां का ट्री का फ्रूट इतना ज्यादा था कि उनका जो ब्रांचेस होता है ना, वो नीचे तक झुक जा रहा था. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वो बहुत खुश रहता था क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्रूट था ना. दैट इज व्हाई दैट मंकी वाज वेरी हैप्पी ईटिंग दैट फ्रूट. और वो जो अपना चॉइस से फ्रूट खाता था, है ना, जो अच्छा लगता था उसी को खाता था, और जो अच्छा नहीं लगता था he used to throw into the river, नदी में फेंक देता था. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. But there was no one around, not even any monkey, till one day a crocodile appeared on the river side. So यहाँ पे क्रोकोडाइल तो बहुत खुश था, सॉरी क्रोकोडाइल नहीं, मंकी बहुत खुश था क्योंकि उसको बहुत सारे ढेर सारे फ्रूट वहां पे लदे हुए थे ना ऑन द ट्री. तो वहां पे से मतलब अपना अकॉर्डिंग टू हिज विश और अकॉर्डिंग टू चॉइस वो फ्रूट को क्या करता था, खाता था डेली. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था. क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उनके लिए कोई भी कंपनी मतलब फ्रेंड कोई भी नहीं थे, है ना. आपका सबका फ्रेंड है ना? यस, डू यू हैव फ्रेंड विथ यू? Yes, ma'am. डू यू हैव फ्रेंड? Yes, ma'am. सबके फ्रेंड हैं? Yes, ma'am. Yes. बिना Yes, फ्रेंड्स में, if you don't have friend you have to make at least one friend, है ना. ना तो आप लोग को बिल्कुल लोनली फील होता है ना, आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ कहीं होमवर्क करने के लिए या तो कुछ भी करने के लिए एक फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है. इन द क्लास एज वेल एज वो आसपास में कोई भी होंगे तो उसको फ्रेंड बना सकते हैं ताकि आप लोग को लोनली फील नहीं होगा, है ना. तो ये जो क्रोकोडाइल और मंकी बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा था. एंड उसी टाइम क्या है, क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. अपीयर्ड का मतलब क्या होता है? दिखाई दिया, ठीक है. उसी टाइम पे ये क्रोकोडाइल मंकी को दिखाई दिया. हेलो देयर, सॉरी, हेलो देयर द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. सो जब वो क्रोकोडाइल को मंकी देखते हैं तो ही सेज दैट हेलो, क्या आप इस रिवर में रहते हो, क्या आपको कुछ फ्रूट चाहिए. सो गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. तो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ पे क्या खुद ढूंढने के लिए आया हूँ. क्या ढूंढने के लिए आया हूँ बोलते हैं? आया हूँ अपने और अपने वाइफ के लिए. यस, यस, करेक्ट. खाना ढूंढने के लिए आया हूँ अपने लिए और अपने वाइफ के लिए. तो नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. तो ये तो बहुत है जो कि मिल गए और मेरा फ्रूट आप दे दिए मेरे को और मुझे अपने वाइफ को भी
देने के लिए आपने मुझे प्रोवाइड कर दिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हो। The monkey plucked some fruit the nearest branch and threw them down. इसका मतलब क्या होता है? मंकी क्या किए? वो फ्रूट तोड़कर वो नीचे की ओर फेंक दिए। हाँ, मंकी फ्रूट लेकर वो किसकी तरफ फेंक दिया? क्रोकोडाइल की तरफ, है ना? क्रोकोडाइल की द तरफ। क्रोकोडाइल फाउंड देम डेलीशियस। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीशियस? बहुत ही अच्छा। डेलीशियस का मतलब क्या है? बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, है ना? थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट। तो ये क्या बोलते हैं कि इतना स्वादिष्ट है, इतना टेस्टी फूड है, तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो क्या आप मुझे इसी तरह के स्वादिष्ट वाला स्वादिष्ट जैसा ये फ्रूट दोगे क्या? सर्टनली, एज मेनी एज यू लाइक। तो ये मंकी बोलते हैं कि सर्टनली मतलब श्योरली, आई विल गिव यू, और आपको जो अच्छा लगेगा वैसे वाली फ्रूट ही आपको मैं दूंगा। एंड सर्टनली एज मेनी एज यू लाइक, और आपको जितना चाहिए उतना मैं दूंगा। एंड सम ऑफ योर वाइफ टू, और आपको घर लेने के लिए भी दूंगा, आपके वाइफ के लिए। सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। तो ये मंकी बोलते कि आप बार बार आया करो मेरे पास, क्योंकि मैं अकेला हूँ और बिल्कुल लोनली फील करता हूँ। लोनली मतलब अकेलापन। अकेलापन, है ना? हाँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो ये जो दोनों अभी क्या हो गए? बेस्ट फ्रेंड हो गए ना। जब हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो कैसा लगता है? वी फील हैप्पी। यस मैम। डू यू फील हैप्पी? यस मैम। यस, अच्छा लगता है। यस, एक भी टॉफी है, एक चॉकलेट है छोटा सा, उसको भी हम क्या करते हैं? उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, है ना? मैम शेयर करते यस हैं। और नो? 50-50। हाँ, हम शेयर शेयर करते हैं। 50-50, क्योंकि हमारा वो बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको भी हाफ देते हैं। हम हाफ खाएंगे और उसको भी हम हाफ देंगे, तो 50-50 हम उसको डिवाइड कर देते हैं। दैट इज अ ट्रू फ्रेंडशिप ना, कि अकेला एक ही को पूरा खा जाते हो। खा जाते मैम हो क्या शेयर करते नितिन? हैं। शेयर करते हैं। वेरी गुड, दैट इज गुड इंटेंशन एंड गुड वे। सो यहाँ भी इन लोग दोनों एक साथ होकर दे यूज टू टॉक अबाउट द विलेजर्स, विलेजर्स के बारे में, एनिमल्स, बर्ड्स की बात करते थे। और क्या बातें करते थे? जो विलेजर्स डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उनके प्रॉब्लम क्या है विलेज में, गांव में उनका प्रॉब्लम क्या है। क्रॉप्स मतलब जो फसल। चाष करते थे फसल। उनपे फसल जो है वो फसल अच्छा से नहीं होता था। तो अच्छी फसल नहीं होने के वजह क्या था? लैक ऑफ रेन, मतलब वहां बारिश अच्छा मतलब रेन अच्छा से नहीं हो रहा था। दैट इज वाई दैट क्रॉप या तो फसल अच्छा से नहीं हो रहा था, है ना? सो ऑल दिस थिंग्स दे यूज टू टॉक ईच अदर। डेली उन लोग विजिट करते थे एक दूसरे को, मतलब ये क्रोकोडाइल डेली वो नदी के किनारे आता था, है ना? किसको विजिट करने के लिए? मंकी। मंकी को विजिट करने के लिए। गुड। अभी नेक्स्ट विल सी। The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. She did not like his friendship with the monkey. The crocodile could not altogether ignore his wife's wishes. अभी देखो। One day the crocodile stayed with a monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" अभी देखो, एक दिन क्या हुआ? The crocodile was late as usual, मतलब जितने टाइम में आते थे उतने टाइम में वो घर वापस नहीं आए। So that crocodile's wife was very annoyed. Annoyed का मतलब गुस्सा हो गए, है ना? Annoyed हो गए, और उनसे मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे कि वो उतना देर तक वो मंकी के पास
रहा करते थे। एंड दे हैड अ स्मॉल बेबीज, है ना, छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास। सो शी वॉज वेरी मच टायर्ड ऑफ लुकिंग आफ्टर दोज चिल्ड्रन, और इसका हस्बैंड जल्दी नहीं आ रहा है, तो शी वॉज वेरी मच अनोयड। एंड शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो उसको गुस्से से बोलते हैं, ये कौन सा दोस्त है आपका जो कि आप इतने देर तक वहां पे रुक जाते हो। ओ, he is a very nice monkey, he replied, he lived on a fruit tree। तो वो बोलते हैं कि that friend is very nice, और वो कहाँ पे रहते हैं, he is living on the tree, he sends fruits for you every day, you don't expect me to climb trees to you, do you। तो ये बोलते हैं कि वो एवरी डे वो फ्रूट तोड़कर, पेड़ से तोड़कर, ही गिव्स मी एंड फॉर यू ऑल्सो। तो क्या आप मुझे चाहते हो कि मैं डेली आपके लिए फ्रूट तोड़ने के लिए पेड़ पे क्लाइंब करूं? दिस इज नॉट, आई कांट डू दैट। तो मैं वो चीज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं फ्रेंड बनाया हूँ, और वो फ्रेंड इज वेरी नाइस फ्रेंड। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. तो अभी क्या बोलती है वो? Okay, your friend is very nice. So क्या करने चाहती थी वो? वो बोलती है कि I want to eat his heart मैं उसका as कलेजा my food। खाना चाहता मतलब हूँ। उनका खाने चाहती हूँ। सो अभी मुझे उसका कलेजा। क्रोकोडाइल बोलती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट इज फुलिश वे, shouted the crocodile। I cannot kill a friend, though I want to mind a monkey occasionally for a change of taste। तो मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। He is my true friend, he is my best friend, so I cannot kill for your taste, है ना, आपके टेस्ट के लिए मैं उसको किल नहीं कर सकता। You bring him here, ordered the wife, I want to see him, so you can eat him, never, declared her husband। तो ये मंकी ये क्रोकोडाइल क्या बोल रही है कि you bring him, उनको हमारे घर लेके आ जाओ, मैं उनको देखने चाहती हूँ। तो ये मंकी बोलते, क्रोकोडाइल्स का वाइफ हस्बैंड बोलते हैं कि क्या आप उसको मारने चाहते हो, खाने चाहते हो? नेवर, कभी ये नहीं हो सकता। पर यू सी हिज वाइफ वाज फ्यूरियस एंड शी डिवाइड इनटू hide himself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father। इसका मतलब क्या होता है? she went down to the water, पानी के नीचे चली गई, और उनके छोटे छोटे बच्चों को सिखाई कि आपके पापा को बोलो कि वो मंकी को अपने घर लेके आएगा, है ना। पेस्टर देयर फादर, मतलब उनको क्या मक्खन लगाना बोलते हो ना? यस मैम। ना, उन अच्छी अच्छी बातें बोल के उसके बाद लास्ट में बोलोगे पापा को, है ना। पहले तो कुछ चाहिए होता है तो क्या करते हैं बच्चे, पापा को क्या करते हैं? मैम अपने पूछ अच्छे के बातों से सुलझाते हैं मैम, हाँ, अपने बात में। ये आपने बातों पे लाना है ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, ये सुन नो। हाँ, यस मैम। बहुत अच्छे अच्छे बात करेंगे, उसके बाद पापा पता है मुझे ना ये चाहिए है, तो इस तरह की बातें करके पापा को बहला लेते हैं, है ना। उसी तरह ये क्रोकोडाइल जो है, वाइफ शी क्रोकोडाइल है, वो बच्चों को सिखा कर रखी है कि आप बोलो आपके, जो कि वो अपने घर लेकर आएंगे। The crocodile was in a serious dilemma। serious dilemma मतलब in serious condition। He loved his wife and was very fond of his friend too। और ये जो मंकी क्रोकोडाइल था वो मंकी को भी बहुत अच्छा पाता था, है ना। He was a good friend and he loved his wife also। अपने वाइफ को भी बहुत प्यार करता था, इसीलिए he was in क्या बोलोगे, कंफ्यूजन में था कि क्या करना है।
he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it is a sin to betray a friend, but I have no choice. He said to himself, I will invite the monkey home and hope for the best. So यहाँ देखो, जो अच्छी दोस्ती बने थे ना, बेस्ट फ्रेंड थे ना, विश्वास करके थे, और विश्वासघात करेंगे अभी देखो. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, अपने वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए नाउ ही विल बिट्रे मतलब अपना फ्रेंड को क्या करेगा, त्याग देगा, कर देगा. ओके. ही विल यस, आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. तो वो बोलता है कि यस आई विल, मैं मंकी को अपने घर लेके आऊंगा और आपको जो अच्छा लगे वो करना, अपने वाइफ को बोलता है. ओके, माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील, डियर फ्रेंड, said the crocodile when he invited the monkey next. You must come home with me today. तो अभी ये मील के लिए मतलब खाना के लिए इनवाइट किए हैं. अभी नेक्स्ट टाइम भी फिर माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, ये बोलता है कि खाना के लिए इनवाइट किए हैं मेरे वाइफ आपको, इसीलिए आपको आज चलना होगा. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. तो ये मंकी बोलता है कि मुझे तो तैरने नहीं आता, फिर मैं कैसे नदी पार होके जाऊंगा. सो आई एम नो स्विमर मतलब आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर, आई कैन राइड ऑन योर बैक. तैर नहीं सकता, और आपके पीठ मतलब आपके बैक में बैठ के तो जा सकता हूँ, पर मैं तैर नहीं सकता. सो एंड दे सेट आउट मतलब मंकी उसका बैक में बैठा और उन लोग यात्रा शुरू कर दिए, जर्नी शुरू कर दिए इन द रिवर, है ना, वाटर. सो इन द मिडल ऑफ द रिवर where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife can't survive without eating your heart. Goodbye. So यहाँ देखो he says कि जब करंट ऑफ वाटर मतलब वो वाटर बहुत गहरा था, वहां पे चला गया, जाने से पहले क्या बोलता है कि सॉरी माय फ्रेंड, मुझे माफ कर देना मेरा फ्रेंड, मैं आपको यहाँ मील के लिए खाना के लिए इनवाइट नहीं किया है, आपको मैं यहाँ किल करने के लिए मतलब आपको मार डालने के लिए बुलाया गया है. यहाँ पे मेरे वाइफ को आपका हार्ट की जरूरत है, और विदाउट योर हार्ट मतलब आपके हार्ट के बिना मेरी वाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो गुड बाय. तो गुड बाय बोलते ज्यादा को. द मंकी वाज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. मंकी बहुत सैड हो गया. क्यों? क्योंकि अभी किसी को पता चलता है ना आज कोई आपको मार डालेंगे, पता चलेगा तो आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू? बहुत सैड फील होगा, आपको लगेगा कि अरे यार आज तो मैं मर जाने वाला हूँ, हाँ मर जाऊंगा. तो वो फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देता है लोगों को ना, पूरा डिस्ट्रेस हो गया. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज. लेकिन उसका दिमाग था, देखो मंकी का दिमाग था. ओके, ही केप्ट अ कूल हेड calmly. He said, I had do anything for you and your family. You are my only friend after all. What is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I have brought my heart alone. तो ये बोलते हैं कि मैं तो अपने दोस्त के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ. मंकी बोल रहा है, क्लेवर माइंड, सोच लिया अच्छा से. उसके बाद बोलता है आई कैन गिव एनीथिंग फॉर माई फ्रेंडशिप सेक. मैं अपने फ्रेंड के लिए सब कुछ दे दूंगा, लेकिन पहले आने से पहले कम से कम मुझे पूछना चाहिए होता है ना. आपने कुछ नहीं पूछा. यू डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग.
So you see, I haven't brought my heart along. अब देखो, आप तो पहले नहीं बोले, इसलिए मैं अपना हार्ट साथ में नहीं लेके आया है. देखो. But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. तो ये बोल रहा है कि आपका हार्ट कहाँ है फिर? मैं तो सोचता हूँ कि आप अपना हार्ट कैरी करके घूमते फिरते रहते हो. Of course not. तो मंकी बोलता है नहीं नहीं, मैं तो कभी अपना हार्ट को लेकर नहीं घूमता, मैं तो पेड़ के ऊपर ही रखता हूँ. It's there on the tree. मैं ट्री के अंदर ही वहीं पे छोड़ के घूमता हूँ. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. तो ये बोलते हैं कि यस, मैं तो अपना हार्ट को वहां छोड़ के आया हूँ, तो चलो चलते हैं वापस लाने के लिए. सो व्हाट दे डिड, दे वेंट बैक, है ना, उन लोग वापस चले गए. ओ डियर, व्हाट ए मिस्टेक, ही इज द क्रोकोडाइल. तो वो बोलते हैं कि क्या मिस्टेक कर दिया हमने, फिर इतना दूर से आने के बाद फिर जाना पड़ेगा. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. उसके बाद दोनों क्या किए, वापस चले गए ट्री के उधर, है ना. स्विमिंग बैक मतलब वो वापस टर्न करके वो ट्री की ओर चले गए. On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. जब वो जंप कर दिया मंकी ऑन द ट्री, तो उनको इतने रिलैक्सेशन महसूस हुआ कि पूछो मत, है ना. He plucked a fruit or two from the nearest branches and threw them down, said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." तो ये मंकी गुस्सा से क्या बोलते हैं कि ले लो फ्रूट, दे देना आपके वाइफ को, वो मेरे फ्रूट की जगह पे मेरा हार्ट खाने चाहती थी ना, इसलिए अभी उसको कुछ हार्ट आउट कुछ नहीं मिलेगा. यू टेक द फ्रूट एंड गिव हर. फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. तो ये बोलते हैं मंकी कि अच्छे फ्रूट, फ्रेश फ्रूट वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है. गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वांट मीट अगेन. तो ये बोलते हैं कि यदि आप ऐसा चाहते हो, कुछ मतलब ऐसे हानिकारक चाहते हो अपने दोस्तों के लिए, तो हम कभी वापस नहीं मिलेंगे. ठीक है. द क्रोकोडाइल, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. तो यहाँ पे देखो, तो क्रोकोडाइल बहुत सैड फील किए कि क्योंकि उनका फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो गया, है ना. जो फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, वो अभी एनिमी जैसा हो गए, फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं रहा. इसीलिए वो क्रोकोडाइल का आंसू बह रहा है ना. He is crying. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. तो ये बोलते हैं what happened that he wanted to tell his wife that what had happened to him. Okay, समझ में आया बच्चे? यस मैम. यस मैम. पूरा चैप्टर ही कवर कर. तो यहाँ पे now you see, do you have any doubt in this? I don't think that you have doubt ना. Yes? डाउट नहीं है ना, है कुछ डाउट है बच्चे? अच्छी स्टोरी है. नो मैम. है ना. नो, कुछ शेयर मत करो बेटा दिशांत. हाँ, तो ये जो है ये छोटी सी स्टोरी है ना, वेरी नाइस स्टोरी. तो आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है नितिन, आपको क्या मोरल मिलता है स्टोरी से? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मैम हमें इस स्टोरी से मोरल मिलता है, हम हमें हमें दूसरों पे कभी विश्वास करना चाहिए, पर की तरह हमें कभी बनना नहीं चाहिए. हाँ, विश्वास करना चाहिए लेकिन उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना. यस हिमांशु. यस मैम. हाँ बेटा,
आप लोग वीडियो ऑन करो, लेट मी आस्क यू मोरल। आप लोग को मोरल समझ में आया नहीं आया अभी पता चलेगा। हाँ बताओ, आपको इस वाले स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? व्हाट इज द मोरल? मैम इसमें तो हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। करेक्ट, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नाइस, गुड वर्ड। धोखा देना नहीं चाहिए। धोखा देने से क्या हो जाता है? वो इंसान टूट जाता है ना? यस यस और नो, टूट जाता है ना। अभी उनका फ्रेंडशिप बिल्कुल ब्रेकअप हो गया, टूट गया। जैसे कि आपको मम्मी पापा के पास कुछ भी बोलते हो, कुछ विश्वास दिलाते हो, उसके बाद आप उसके ऑपोजिट कर देते हो, तो क्या हो जाता है? आप उनको धोखा देते हो, है ना? यस यस मैम। यस, एनीवन? नहीं रहा है इसलिए आई कैन नॉट आस्क यू ऑल। यस आकर्षित, आकर्षित बताओ बेटा, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मैम कभी मैम दूसरों को मतलब कि उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उसके साथ बुरा ना करें। यस, विश्वास दिलाना चाहिए। गुड, विश्वास दिलाना चाहिए। और ये भी ना कर पाए कि उनके मतलब उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हानि भी ना करें उनको, है ना? उनके लिए जब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हानिकारक भी ना करें, है ना? गुड, यस मैम। एनीवन? और कोई बेटा? ऋचा को क्या मिला इस मोरल क्या मिला स्टोरी से? मोरल क्या मिल रहा बेटे आपको? यस अंकित, दिशांत, वीडियो ऑन करो बेटा। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? चलो बेटा बताओ, हिंदी में ही बताओ। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, टेल मी इन हिंदी ओनली, नो प्रॉब्लम। चलो कम ऑन, अनम्यूट कर लो। हाँ बोलो, जोर से बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशांत, माइक्रोफोन थोड़ा सा पास में कर लो और बोलो। मैम हमें किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यस करेक्ट, हमें किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, है ना? वेरी गुड। यस, और कोई बोलने चाहते हो बच्चे? बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, इतना जल्दी मोरल स्टोरी, पूरा स्टोरी का पूरा मोरल समझ लिया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। यस। अंकित आप बोलो बेटा, अंकित का नाम भी मैंने लिया था। यस अंकित, वीडियो ऑन करो बेटे और बोलो, अनम्यूट म्यूट कर लो और बोलो। वेयर आर यू अंकित? यस कम ऑन। मैम इस कहानी का ये मोरल है मैम, हमें दोस्ती कायम रखनी चाहिए। यस, दोस्ती कायम रखनी चाहिए, ना कि दोस्तियों को धोखा देना चाहिए, है ना? यस मैम। करेक्ट। Yes, who is that? We cannot believe on others. We cannot believe on others. Correct. That also is correct. Who is that? कौन बोला बेटे? Dishant. Correct. Very good. So blindly we cannot believe. किसी को आंख बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना? Yes. मैम वो धोखा दे सकता है आगे जाके। Yes, correct. कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। आप फ्रेंड बनाते हो, है ना? फ्रेंड्स हैं आप लोग के पास, सबके फ्रेंड हैं, बट यू हैव टू ऑब्जर्व। फ्रेंडशिप तो है, अच्छी बात है, लेकिन उसको फ्रेंड को अच्छा से पहचानना है। क्या ये आगे जाके धोखा दे सकता है या ईमानदार हो सकता है? दिस इज द राइट टाइम
ना, टू चूज गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त बनाओ जो कि आपके हर एक मुसीबत में आपको क्या करें, हेल्प करेंगे, है ना। तो इस वाले चैप्टर में से आप लोग को यही शिक्षा मिला है ना, यू शुड नॉट बी इन बैड कंपेनियन, है ना, यू शुड बी इन गुड कंपेनियन, गुड फ्रेंडशिप। अच्छी बुक में आपके नाम लिखना चाहिए, ना कि बुरी बुक में, है ना, गुड बुक में आपका नाम होना चाहिए, एम आई राइट। अच्छे काम Yes, ma'am. करोगे तो सारे बोलेंगे कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, जैसे कि नितिन बोलने से, हिमांशु बोलने से सबके दिमाग में आ जाता है कि यस, टीचर के दिमाग में आ जाएगा। अच्छे काम करे रहोगे तो ओके दैट बॉय इज वेरी गुड, और अच्छे काम नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे, दैट बॉय इज वेरी नॉटी, है ना। यस यस करेक्ट। तो अच्छे बनने के लिए हमको मेहनत करना चाहिए, अच्छे बनने के लिए हमको ओबीडियंट बनना चाहिए, और अच्छी दोस्ती करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे दोस्ती में पड़ जाओगे तो खुद ही बुरा हो जाओगे, ऐसा होता है। तो नाउ यू आर वेरी स्मॉल किड्स ना, 6 में आ गए, तो अभी तो आप लोग का मेच्योरिटी बढ़ रहा है, सो यू शुड नो। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लेसन दिया जाता है बेटा, ताकि आप लोग को कुछ शिक्षा मिले, है ना। आप कुछ बोलने चाहते हो, यू वांट टू से समथिंग? क्वेश्चन आंसर। यस आकर्षित बोलो बेटा, यू वांट टू से समथिंग, क्वेश्चन आंसर। यस मैम। क्वेश्चन आंसर बेटा आप लोग को मैं भेज दूंगी, क्वेश्चन भेजूंगी इन गूगल क्लासरूम, है ना। डू यू नो हाउ टू आंसर? Yes, ma'am. यस मैम। आंसर देने पाओगे बेटा, या आंसर भी लिख के Yes, ma'am. भेजूंगी? Yes, ma'am. मैम You आंसर will हम know, लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे, है ना। तो यू विल विजिट द मैम गूगल व्हाट्सएप ग्रुप क्लासरूम। में भी